Okay, दिख रहा है? It is visible. Yes, it's visible. Yeah. Okay, we will start with Hatha Yoga. Hatha Yoga means Chaturanga Yoga, the other name of Hatha Yoga. Hatha Yoga written in 15th century. The propounder or the author is Swami Swatwaram Suriji. Now, this is the first slide. The first slok, Adinathaya Namostute na tasme yono upadishta. हठ योग विद्या विभ्रजाते प्रो उन्नत राज योगम आरूढ़म इच्छा अधिरोहिणी. Okay, we will see in the next slide the meaning of this shlok. Now the second slide is the Hatha Granthas. The Hatha Granthas are Shiva Samhita, which is unknown, written by unknown. It is written by Shiva only, but the references or the written any proof is not available, so we are saying unknown. The Siddha Siddhanta Paddhati, Gorakshanath in 10th century. Hatha Pradipika, Swami Swatwaram Suri in 15th century, which we are going to see. Gheranda Samhita, Gheranda Muni ne likhi hai 17th century, and the Hatha Ratnavali is after 17th century, the 18th century, Srinivas Bhatt ne likhi. These are the Hatha Granthas, and the definition of Hatha Yoga is Siddha Siddhanta Paddhati. सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसका उल्लेख आता है कि हठ विद्या मतलब क्या. ह मीन्स व्हाट एंड ह मीन्स व्हाट. ह मीन्स सूर्य नाड़ी and th means chandra nadi. That is another name or another called as a surya swar, chandra swar. We have to balance our right nostril and left nostril in a balanced state. That means your surya nadi control your left hemisphere, your left nodi controls your right hemisphere. You have to control it in any situation. That is a Hatha Yoga. Now here, some people are propaganda or some people are spreading the Hatha Vidya means very high level practice, and the beyond the practice you have to stretch it. Not like that. This is a misconception. Okay, you can understand this better way because some MA student and the post graduation student are not knowing about this, the correct knowledge of Hatha Vidya. Now next, the Hatha Vidya is called as a Chaturanga Yoga. Swami Swatwaram Suri is a propounder or the author. In 4 chapters, it is mentioned by Hatha Pradipika, Asan, Kumbhak, Mudra, Nadanusandhan. But the Kaivalya Dham Yoga Institute mentioned the 5th Anga also, that is Aushadhi Kathanam. We will see later the Aushadhi Kathanam what it tells in that chapter, but we are just seeing the basic knowledge of Hatha Yoga. Now the next slide is first श्लोक आदिनाथाय नमोस्तुते. आदिनाथ को नमस्कार करते हुए मैं आपको हठ विद्या बताता हूं, which is stepping stone of राजयोग. प्रो उन्नत राजयोगम आरूढ़म इच्छा अधिरोहिणीम. आपको प्रो उन्नत करने के लिए, आपके जो पर्सनैलिटी है उसको शाइन करने के लिए आपको हठ विद्या, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान करना ही पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड श्लोक, दैट इज क्लियरली मेंशन केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश. केवलम मीन्स ओनली, only and only the Hatha Vidya tells about Raj Yoga. Okay, so this is the goal or purpose or the ultimate state is Raj Yoga. Now we saw already the Raj Yoga's Mahatva or the importance of Raj Yoga. In every chapter it is given. In first chapter, second chapter, third chapter and fourth chapter, it is already said by Swami Swatwaram. Raj Yoga is a important in Hatha Vidya. Okay,
These are the shlokas in 1.8 means 1.8 means the first chapter. The 2.76 means second chapter. The first chapter is Asan, second chapter is Kumbha. Now, the fourth chapter is Nadanusandhan. It is already written. Ekim Bhutam Tada Chittam Raj Yoga Abhidanakam. हाँ, इस तरह से उन्होंने बताया है. नाउ थर्ड चैप्टर में भी उन्होंने बताया है कि राजयोग बिना पृथ्वी, राजयोग बिना निशा. ये पृथ्वी मीन्स आसन, निशा मीन्स कुंभक और मुद्रा मीन्स मुद्रा. ये करने से ही आपको राजयोग प्राप्त होगा, ऐसा इन्होंने बताया है. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ हठ योग. व्हाई शुड वी डू हठ योग? बिकॉज स्वामी स्वात्माराम टेल्स अबाउट दिस कि अशेष ताप तप्तानाम, जो त्रिताप है वो त्रितापों से आपको मुक्ति मिलाने के लिए, दुखों से आपको मुक्ति मिलाने के लिए आपको हठ योग करना जरूरी है. अशेष ताप तप्तानाम मतलब त्रिताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक. इट इज ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट इट कि 3 ताप कौन से हैं और वो आपको भी पता है. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये जो हमारा हुआ है उसको सिर्फ रिकैप करेंगे. द प्रैक्टिस ऑफ योग टू बी केप्ट इन सीक्रेट. व्हाई इट शुड बी कीप एज ए सीक्रेट? क्योंकि अगर बताएंगे तो बहुत सारा डिबेट होगा और डिबेट होगा तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी. सो कीप साइलेंस एंड डू प्रैक्टिसिंग. आसन, pranayam, whatever the scripture told us, you have to do it as per shastra, as per scriptures. Then it will be benefit that asan or pranayam or any kind of the practice, it will be prakashita, means आपका अच्छे से प्रकाश में आपका पर्सनालिटी बनेगा. Now the importance of हठ मठ मीन्स हठ योग करने वाला का मठ कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर एक हाथ 2 क्वेश्चन आते हैं. तो मठ कैसे होना चाहिए? तो सुराज्य होना चाहिए, धार्मिक राज्य होना चाहिए, देश होना चाहिए. उस देश में सुभिक्षा, निरुपद्रवे, कोई भी मतलब कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए. राइचियस राज्य होना चाहिए और भिक्षा भी वहां पे आसानी से मिलनी चाहिए. और उनका मठ जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? धनु प्रमाण पर्यंतम शीला अग्नि जल वर्जित. शीला मीन्स बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर, अग्नि वहां पे नहीं होना चाहिए, जल वहां पे नजदीक नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है. धनु प्रमाण पर्यंतम, जहां तक आपका बाण जाता है. अगर यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से हम अगर बाण छोड़ेंगे जब तक जाता है तब तक, ऐसा इन्होंने बताया है. नाउ एकांते मटिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना. अकेले ही आपको साधना करनी है. हमको कैसे है, हमारी दोस्त नहीं आएगी तो मुझे नहीं होगा. हमारा ये अभी का हमारा जो भी मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द झोपड़ी और हट मठ. मठ इज लाइक दैट. अल्प द्वारम, स्मॉल डोर होना चाहिए. गर्त विवरम मीन्स फ्री फ्रॉम फ्री होल्स एंड हॉलोज. नाइदर टू हाई एंड नॉर टू लो. अगर पहाड़ के एकदम ऊंचाई के ऊपर, शिखर के ऊपर अगर रहेंगे तो आने जाने में ही तकलीफ हो जाएगी. तो पहाड़ के एकदम शिखर के ऊपर भी नहीं और बेस के ऊपर भी नहीं, बीच में ही आपको झोपड़ी करनी है. और वो जो फ्लैट एरिया है, प्लाटू है, वो प्लाटू आपको ढूंढना है. देन ये जो आंगन है या घर जो है, ये गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए. वहां पे कोई भी जंतु नहीं होना चाहिए. बाहर की तरफ मंडप होना चाहिए और फेंसिंग होना चाहिए, कंपाउंड भी होना चाहिए. और एक बातें करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, चिटचाट करने के लिए आपको एक चबूतरा भी वहां पे होना चाहिए. द रेज्ड प्लेटफॉर्म शुड बी देयर and a well and a compound. These are the characteristics of a room for hठ yogis have been described by adepts in the practice of hठ yoga. Now we are coming on next slide. गुरु शिष्य परंपरा तो उनकी है ही, क्योंकि नाथ संप्रदाय उन्होंने बताया है. नाथ संप्रदाय, इट इज अ वेरी फेमस संप्रदाय इन महाराष्ट्र ऑल्सो. अहमदनगर में ये बहुत सारा इसका नाथ संप्रदाय है. और
संत ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्ति महाराज, और अभी के जमाने में गिरी महाराज करके वहाँ पे अभी बहुत फेमस है। तो ये नाथ संप्रदाय फेमस है और गुरु शिष्य परंपरा इन्होंने बताई है। गुरु की जरूरत बहुत लगती है आसन करते समय, प्राणायाम करते समय, मुद्रा करते समय और नादानुसंधान करते समय तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इन्होंने गुरु के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया है। गुरु पदिश्र मार्गे न एकमेव सम अभ्यसेत, ऐसा बताया है ना। प्राणायाम भी उन्होंने वैसे ही बताया है कि गुरु के मार्गदर्शन के नीचे करना है। अगर गलत कर देंगे तो अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समद्भवा, बहुत सारे रोग आपके निकल आएंगे। तो ये सारे ऐसे बताया है 3.2 में, मतलब तीसरे चैप्टर में, 4th चैप्टर में भी बताया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन बाधक तत्व। बाधक तत्व आर 6, मीन्स अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यमच, षडभिर्योगो विनश्यति। यहाँ पे भी देखिए स्वामी स्वात्माराम ने बैलेंस रखा है। जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो 6 बाधक तत्व, 6 साधक तत्व। तो कहीं पे भी इन्होंने स्ट्रेच नहीं किया है, कहीं पे भी इन्होंने लंबाया नहीं है, खींचा नहीं है, अति नहीं कर रही है, टू मच नहीं कर रहे हैं। अभी टू मच करेंगे तो क्या तकलीफ होगी, आपकी तकलीफें बढ़ेंगी और आपका जो साधना है वो आपका फल फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अति सर्वत्र वर्जयते, ऐसा बताया है। उसके बाद में साधक तत्व में जो जीवन में सफल करने वाली, योग में सफल करने वाली तत्व बताए हैं। उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानात, निश्चयात, जनसंग परित्यागात। जो टॉक्सिक पीपल है, जो लो एस्पिरेंट पर्सन है, उनके साथ में रहना नहीं है। यू हैव टू अवॉइड देम, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। दीज आर द हठ योग द्वारा साधक बाधक तत्व बताए हैं। एम आई ऑडिबल ना? आप हो ना सब लोग कि मैं अकेले ही सब कुछ बोल रहा हूँ? Yes, audible. You're audible. Yeah. Yes, sir. Now these are the elaborated badak tattva and sadak tattva. So now yamas and niyamas, here also Swami Swatvaram ji tells about the balancing tattvas, the 10 yamas and 10 niyamas. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच. These are the 10 yamas. And yamas means what? Yamas means it is not a social observances, और सोशल में रूल्स और रेगुलेशन पालने के लिए नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना कि कई लोग बहुत सारे बोलते हैं। कल मैं लेवल 3 की एग्जाम लेने के लिए गया था, तो वहां पे भी वैसे ही बता रहे थे कि यमाज मीन्स समाज में रहने के लिए नियम बनाए हैं, तो ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। दीज आर फॉर अस ओनली, ये अपने लिए है। अहिंसा आपके वाचा, मना, काया, इसके साथ में नहीं होनी चाहिए। या आपको फल फ्रूट देगा, आपको इसको फायदा होगा, दूसरों को कुछ भी नहीं होगा। सो ये कभी भी याद रखिए, अगर कुछ पूछेंगे कभी यमाज और नियमाज के बारे में, तो दीज आर ओनली पर्सनल, वैयक्तिक, अपने आप के लिए है, अपने चित्त की शुद्धि के लिए है, अपने डिसिप्लिन के लिए है, ये दूसरों के लिए नहीं है। Can I interrupt here? या प्लीज। Actually, I teach Patanjali Yoga Sutra these days. तो हम लोग ये पढ़ाते हैं, तो उसमें हमें कई बुक्स में लिखा हुआ है कि नियम are basically social observances in the sense कि आप बाहर मतलब दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस लिहाज तक ये सोशल ऑब्जर्वेंसेस हैं। Okay. और जो नियम हो जाते हैं वो बिल्कुल आपका अपने से ही लेना देना है टोटल। Okay. यम के अंदर आप दूसरों के प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं जो आपको ही अफेक्ट करेगा, तो उस सेंस में थोड़ा सा सोशल ऑब्जर्वेंस का एंगल ले सकते हैं। आई थिंक सो। Yeah, you are thinking correctly, but see Anupriya, what happened, these are the books written by author, Right. and that is the opinion of that author. Right. I am just saying कि whatever in shlokas, in mantras, in scripture tells by Maharshi Patanjali, tells by Swami Swatvaram ji, he never taught us these are for social. Okay, that's हमारे something new for me. Thank you.
I हाँ, was saying, in the sense कि हमारे नो टीचर भी हमको यही पढ़ा के गए। नो यही पढ़ाते हैं, इसके लिए तो ये हमारा जो क्लास है, ये जो हमारा होने वाला है, मैं स्क्रिप्चर के ऊपर ज्यादा भरोसा रखता हूँ, तो Right. यही डिफरेंस है। अभी आप जाके और कुछ भी देखेंगे, अलग अलग चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें जो हमारे जहन में हम लोगों को पढ़ाया है, वो थोड़ा सा उनके हिसाब से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत पढ़ाया है। Right. जब हम लोग एबीसीडी मतलब क्या रहता है, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो होता है ना, तो हमको समझने के लिए उन्होंने आसान तरीके से बताया है। But बट I appreciate this कि हाँ, जो शास्त्र ने जिस तरह से कोट किया है वैसा ही बताना चाहिए। Right. या That's more important. एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, Right. Thank you. प्लीज। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट, द तप संतोष आस्तिक्यम दान ईश्वरम पूजनम सिद्धांत वाक्य शरणम रि मति च तपो हुतम। दीज आर द नेमास एंड दिस इज फॉर ओनली योग शास्त्र विशारदे। जो एक्सपर्ट्स है उनके लिए ये अच्छे से और थोड़ा सा उन्होंने एडवांस लेवल के ऊपर बताया। आपको फिनांस करना पड़ेगा, आपको परसिवरेंस करना पड़ेगा, आपको कंटेनमेंट रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि ये ही सच है, और ये इसके ऊपर भरोसा रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, that is a asan, very attractive, and all world are crazy about asan and pranayam. They are just knowing yoga means what, pranayam and asana, but it is not like that. Yoga means harmony between brain, hand and heart, means मन, बुद्धि और आपका जो मन, बुद्धि और कर्म, जो भी आप करने वाले हो, उसमें हार्मनी लाना है। But okay, that is not our topic. Our topic is asan. So here in asan tells about Swami Swatwaram only the faida or benefit. The benefit is what we are reading this shloka. हटस्य प्रथम अंगत्वदासनम पूर्व मुच्यते। हट का पहला अंग आसन है। कुर्यात दासनम, इफ यू आर डूइंग दिस यू विल गेट स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलागु। देयर आर 3 बेनिफिट्स, स्थिरता स्टेबिलिटी, आरोग्य डिजीजलेस और हेल्थ, एंड अंग लागव मीन्स आपको हल्कापन मिलेगा। नाउ हम लोग ये थोड़ा सा अलग तरह से सोचते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग बनाते हैं। स्थिरता कहाँ पे होनी चाहिए? स्थिरता हमारे मन में होनी चाहिए, स्थिरता हमारे बुद्धि में होनी चाहिए, स्थिरता हमारे शरीर में होनी चाहिए। देन आरोग्य कहाँ पे होना चाहिए? आरोग्य मीन्स ऑल द 5 लेयर्स, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड मनोमय कोश, आनंदमय कोश। ये जो आरोग्य है ये ऑल द लेवल्स विच इज टेल्स बाय और शास्त्रास मीन्स पंचकोशास, तैतरीय उपनिषद में बताया। अभी WHO भी क्या बता रहा है? WHO भी यही बता रहा है, आपकी जो हेल्थ है वो किसके ऊपर निर्भर है? उसके ऊपर निर्भर है सोशल, पर्सनल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ये पांचों के ऊपर आप अगर फिट हो तो आप आरोग्यपूर्ण हो। नहीं तो आपको मालूम है, एक बहुत ही बढ़िया बंदा जो है हमारे बॉलीवुड का हीरो, दिखने में बहुत अच्छा था, 6 पैक थे उसके, फिजिकली बहुत ही हार्ड था वो, लेकिन मन से वो स्थिरता नहीं थी उसमें, मन से वो स्टेबल नहीं था, इसके लिए उसने अपने आप को खत्म कर दिया। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कल्टिवेट योर माइंड। आपको मन के ऊपर भी स्थिरता रखनी है। Now, cha anga lagvam, always be in a flexible state. श्री कृष्ण जो है वो फ्लेक्सिबल स्टेट में ही रहते थे। वो चाहते तो 5 मिनट में सब कुछ खत्म कर डालते थे। युद्ध और कौरव और पांडवों के बीच में इतना बड़ा लंबा यही नहीं चलता था, लड़ाई नहीं चलती थी, लेकिन उन्होंने कभी किया क्या? वो फ्लेक्सिबल थे, जो चल रहा है उसमें उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, जो भी चल रहा है वो चलने दो, फ्लेक्सिबिलिटी लाई है, हर टाइम पे फ्लेक्सिबल रहे हैं। ठीक है ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ऐसा है, ऐसा करते हैं।
जो कर्म का सिद्धांत है वो कर्म के सिद्धांत में उन्होंने हाथ नहीं डाला, उन्होंने कर्म सिद्धांत वैसे ही चलने दिया। तो पॉलिसी क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी। तो वैसे ही शरीर में और मन में और आपके एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। नियम का आग्रह नहीं करना है जो वहां पे बताया है बाधक तत्व में। नहीं नहीं, वो 90 डिग्री का कोण आना ही चाहिए, वो हाथ उसका ऊपर होना ही चाहिए। ठीक है, विजय सर का वो नहीं हो रहा है तो विजय सर गलत नहीं है, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो कर रहे हैं। तो ऑलवेज बी इन अ फ्लेक्सिबल स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट the 15 asana give in Hatha Pradipika. The first asana always we are, कुछ भी हम लोग करते हैं तो हम लोग शुभ कार्य से करते हैं, शुभ चिन्ह से करते हैं। तो शुभ चिन्ह क्या है? स्वस्तिकासन। स्वस्तिक हम हमारे घर के ऊपर निकालते हैं ना स्वस्तिक, तो स्वस्तिकासन से स्टार्ट किया है। उसके बाद में गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्र पीठ। देखिए पीठ लिखा है, PITH, पीठ। तो पीठ मतलब क्या? पीठ मीन्स आसन। देखिए हम लोगों ने बहुत बार महाभारत रामायण देखा होगा, आसन ग्रहण कीजिए, ऐसे बताते हैं ना। आसन ग्रहण कीजिए मतलब वो जो कुर्सी है, वो जो चेयर है, उसको भी आसन बोला जाता है। हम लोग जो बैठते हैं वो भी आसन बोला जाता है, तो उसको अलग से नाम पीठ भी बोला गया है। ओके, देन पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन एंड पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। मैंने ये रेड कलर में लिखा है ना, रेड कलर में लिखा है, इसका कारण ये है कि ये सिद्धासन को अलग अलग टाइप के ऑप्शनल नाम दिए गए हैं। सिद्धासन के 3 नाम अलग से और दिए गए हैं। उसको मुक्तासन भी बोलते हैं, गुप्तासन भी बोलते हैं और वज्रासन भी बोलते हैं। तो दीज आर द अनदर नेम्स। एंड भद्रासन को क्या बोला जाता है? तो भद्रासन में गोरक्षनाथ बैठते थे, इसके लिए गोरक्ष आसन भी बोलते हैं। तो ये रेड कलर में लिखा है। और यहाँ पे देखिए मत्स्येंद्र पीठ में ऐसा लिखा है कि कुंडलिनी अराउजिंग है, लेकिन मत्स्येंद्र पीठ का हम लोग फायदा देखेंगे तो 4 फायदे हैं, वो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। प्रचंड रुग मंडल खंडनास्त्रम, चंद्र स्थिरत्वम, कुंडलिनी प्रबोधम। हम लोग देखेंगे आगे वाले स्लाइड में, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। नाउ स्वस्तिकासन मीन्स ऑस्पिशियस पोज, गोमुखासन मीन्स लुक लाइक अ काउ, वीरासन अर्ध पद्मासन, कुर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन विथ बोथ द हैंड्स एंड टच टू ईयर्स। देखो धनुरासन कैसे प्रकार से बताया है, हम जो करते हैं वो नहीं है, समझ लीजिए। ये दोनों हाथों से अपने पैरों के टोच को पकड़ना है एंड दोनों टोच को आपको कान पे लगाना है। तो पोजीशन कैसी हो गई? आपको सीट के ऊपर बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज अनदर और डिफरेंट काइंड ऑफ धनुरासन। ओके, नाउ जो मैंने बोल रहा था मैं कि मत्स्येंद्र पीठ का क्या क्या फायदा है और उसका क्या क्या महत्व है, कैरेक्टरिस्टिक है, वी विल सी। नाउ मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिम, आपका फायर इंक्रीज होगा, डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़िया क्रिएट होगा। देन प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम मीन्स ग्रुप ऑफ डिसीजेस। आज के तारीख में मॉडर्न एरा में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जो हमारे पेट के अंदर देखिए गैल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, कहीं कहाँ पे ये जो आपकी रिप केज है वो खत्म होती है और पेट शुरू होता है, वहां पे ये सब कुछ ग्रुप है, बरोबर। तो ये ग्रुप जो है वो ग्रुप की ताकत बढ़ती है, ग्रुप का मसाज होता है और ग्रुप का मसाज होने के बाद उसके ऊपर प्रेशर और स्ट्रेच होने के बाद उसकी जो भी जूसेस है, जो भी इंसुलिन या जो भी गॉल ब्लैडर से निकला हुआ जो भी जूस है वो अच्छे से काम करेगा। ओके, ये याद रखिए। नाउ कुंडलिनी प्रबोधम, कुंडलिनी का प्रबोधन होगा, जो शक्ति है एज पर आवर योगिक कॉन्सेप्ट, देर इज ए डॉर्मेंट अवस्था में शक्ति पड़ी हुई है हमारे बेस के ऊपर, तो वो जागृत होगी। नाउ दिस इज वेरी नाइस। चंद्र स्थिरत्व, चंद्र स्थिरत्व में मतलब आपके ब्रेन में से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो जो है वो सिक्रेट अच्छे से होंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। देखिए 4 फायदे हैं, फायर इंक्रीजिंग, ग्रुप ऑफ डिसीजेस, कुंडलिनी अराउजिंग एंड स्टेबलाइज द नेक्टर oozing from the moon. Where is your moon? In your head. Where is your सूर्य केंद्र? In your navel region. आगे जाके हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे जो आपको सिखाएंगे वो
बहुत ही शास्त्रपूर्ण सिखाएंगे। मणिपुर चक्र और नाभि केंद्र इज सूर्य केंद्र, ये हम लोग इसमें देखेंगे। विपरीत करणी जब सिखाएंगे, विपरीत करणी मुद्रा, तो ये इसमें आएगा। नाउ पश्चिमोत्तानासन, नेम ऑफ द बेनिफिट्स पश्चिम वाहिनी। क्यों इसको पश्चिमोत्तानासन बोला जाता है, ऐसा प्रश्न आता है। व्हाई इट इज सो? पश्चिमोत्तानासन मीन्स पश्चिम बाजू को खींचना, तान देना। हाँ, तो हम लोग जो सूर्य नमस्कार करते हैं तो पूर्व बाजू में देख के, पूर्व बाजू से सूरज निकलता है तब हम लोग करते हैं। तो ऐसा माना गया है कि ये जो हमारी पहली साइड है, फ्रंट साइड है, जो इंटीरियर साइड है, वो पूर्व बाजू है, एंड पोस्टीरियर एरिया जो है दैट इज अ पश्चिम बाजू। नाउ इंक्रीजिंग द एपेटाइट, एब्डोमेन एंड वेस्ट रीजन इज थीम। अरोगता, डिजीज लेस मिलेगा। ओके, नाउ मयूरासन। द मयूरासन बेनिफिट इज, हम लोगों ने देखा था कि मयूर जो रहता है, जो मोर होता है, वो मोर वर्म्स खाता है। तो वर्म्स खाना मतलब विष का प्रयोग होता है ना। वर्म्स मीन्स वहां उसमें से क्या क्रिएट होगा, उसमें से विष या पॉइजन क्रिएट होगा। तो पॉइजन को भी खत्म कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ऐसा प्रकार का आप मोर के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये अगर करेंगे तो आपको कालकूटम बर्न्स, दिस वर्ड विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कि क्या कौन सा प्रकार का खाना खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चलता है और कौन कौन सा आसन करता है। तो मयूरासन एंड कालकुटम बर्न्स आउट डेडली पॉइजन फूड। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आसन। ये हमको लगता है बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट आसन। हम हमारे शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देते हैं, लेकिन चित्त को हम लोग ढीला नहीं छोड़ सकते। तो योग पूरा जो है वो चित्त के लिए बताया है। तो यहाँ पे चित्त का विश्रांति मिलता है। देखो बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। उत्तानम शववद भूमौ शयनम तच्छवासनम, शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांतिकारम। दो टाइप के फायदे बताए हैं। फटीग रिमूव होगा और चित्त को विश्रांति मिलेगी। ये लेवल 3 के और योगा थेरेपिस्ट के कोर्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा आसन है जो आपको चित्त को आराम देगा। तो शवासन। ओके, सो दीज आर द आसन हम लोगों ने देखा ना। उसमें से अभी हम लोगों ने देखा था कि चतुर्शिति आसनानी, किसने बताया है चतुर्शिति? 84 टाइप ऑफ के आसन शिवेन कथितानी च, ये भगवान शंकर ने बताया है। बट उसमें से भी मैं आपको 4 बताता हूं। वो कौन से हैं? तेभ्य चतुष्कम आदय सारभूतम, मतलब इसेंस, ब्रवीम्यहम, मतलब मैं बता रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। सिद्धम पद्मम सिंह भद्रम। तो कैसे सिद्ध पद्म और सिंह भद्र कैसे होगा? SPSB, ये याद रखिए। S मीन्स सिद्धासन, P means Padmasan, S means Sinhasan, and B means Bhadrasan. These are the 4 asana, major asana. In that, the Siddhasan is the best asan. अभी सिद्धासन के जो अलग अलग नाम दिए हैं, मैंने जो रेड कलर में लिखा था ना कि सिद्धासन, मुक्तासन, मुकुटासन, वज्रासन, हाँ, तो इन्होंने सिद्धासन का महत्व बताया है। उसके बाद में और केवल और मुद्रा, सॉरी, कुंभक और मुद्रा के बारे में भी बताया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। न आसनम सिद्धम सदृशम न कुंभ केवल पमहा न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लय। मतलब क्या? सबसे बेस्ट आसन जो है, आसन में सिद्धासन है, और कुंभक में सबसे बेस्ट कुंभक जो है वो केवल कुंभक है, और मुद्रा में सबसे बेस्ट मुद्रा जो है वो खेचरी है, और नाद अनुसंधान में सबसे बेस्ट जो है वह लय है। जब नादानुसंधान देखेंगे तब हम लोग बताएंगे। तो दीज आर द बेस्ट थिंग्स इन आवर स्क्रिप्चर विच इज टेल्स इन हठ प्रदीपिका। नाउ आगे आते हैं, पद्मासन का फायदा क्या होता है। पद्मासन इन्होंने क्या बोला है कि बद्ध पद्मासन, आपको पद्मासन करना है, दोनों हाथों से आपके दाहिने हाथ से
लेफ्ट टो को पकड़ना है, बाएं हाथ से लेफ्ट टो को पकड़ना है। ये पद्मासन हम लोग अभी इसको बद्ध पद्मासन बोलते हैं, वो पद्मासन यहाँ पे बताया है। ओके, तो ये इससे आपका जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिसीजेस। और इन्होंने दूसरा का भी ओपिनियन, दूसरे का भी मत, जैसे अभी अनुप्रिया ने बताया कि ऐसे ऐसे बताया, तो एग्री, आई एम एग्री, नो प्रॉब्लम। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाई है, मैं मानता हूं, चलो अलग अलग जगह पे अलग अलग बताया है, थोड़ा डाइवर्सिटी है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सिंहासन, सिंहासन में त्रिबंदाज अप्लाई होते हैं। आपको दोनों पैरों को क्रॉस करना पड़ता है, और दोनों क्रॉस करे हुए पैर जो है आपको सीट के नीचे पेरिनियम को टच करने पड़ते हैं, और दोनों हाथ जो है वो आपके घुटनों के ऊपर रखते हुए आपको मुंह खोलते हुए बड़ी मुंह खोलते हुए आपको हवा बाहर छोड़नी पड़ती है। तो हवा बाहर छोड़ेंगे तो पेट ऊपर आएगा, पेट ऊपर आएगा तो यहाँ पे भी लॉक होगा, तो ये सारी चीजें होती है, दैट इज अ त्रिबंध वहां पे लगते हैं। नाउ भद्रासन, आई ऑलरेडी टोल्ड कि गोरक्षनाथ उसमें बैठते थे, तो गोरक्षासन भी उसको बोला जाता है, एंड इट इज अ ऑस्पिशियस पोज। इसे देखिए, इसको भद्रासन को गर्भ अवस्था रहने के बाद, मतलब जो गर्भ संस्कार में ये आसन बहुत अच्छे से दिया जाता है, क्योंकि क्या है कि आपका ग्रॉइन खुलता है, और ग्रॉइन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो, वहां की जो ताकत है वो बढ़ती है, और वो डिलीवरी के टाइम में उसको काफी मदद होती है। नाउ वी आर कमिंग ऑन अपत्य। यहां तक आए थे क्या हम लोग? कहां तक थे? We had completed this. हो गया था। ओके, अपत्य भी हो गया था। Yeah. ओके, हाँ। तो अपत्य में देखिए कि 6 टाइप ऑफ टेस्ट है, उसमें से उन्होंने बिटर, एसिडिक, पंजेंट, सॉल्टी, हॉट, ये जो है ये खाने नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि मधुर आहार खाइए। ओके, तो इसको आप देख लीजिए, मैंने तो बताया है ऑलरेडी। सो ऑयल, सीसम, मस्टर्ड, वाइन, फिश, गोट, फ्लेश, कर्ड, ये बहुत कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन में आता है कि कर्ड हठ योगा में चलता है क्या, बटर मिल्क चलता है क्या? तो यहाँ पे इन्होंने ना बोला है। इसका कारण ऐसा है कि आपका मन जो है वो खट्टा हो जाएगा, तो थोड़ा सा तकलीफ में आ जाएगा। इसके लिए आई थिंक सो, ये मेरा कहना है, तो आप इसको मानो मत मानो, कि मन को बहुत इन्होंने, चित्त को इन्होंने बहुत संभाल के रखने को बोला है, कि चित्त में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, चित्त में कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सो दैट कर्ड एंड बटर मिल्क उन्होंने खाने नहीं बोला है। ओके, नेक्स्ट में आता हूं अभी पत्ते के ऊपर, क्या खाना है? तो गोधूम, शाली, यव, पष्टिक, शोभा, अन्न, श्रीराज्य, खंड, नवनीत, सीता, मधुनी, शुंडी, पटोल, कफल आदि का पंचशाक मुद आदि दिव्य मुदकम च यमींद्रिय पत्यम। तो व्हीट, राइस, बार्ली, गुड ग्रेन्स, मिल्क, घी, जैगरी, बटर, शुगर, हनी जो है वो आपको खाने बोला है इन्होंने। ओके, हाँ, सो लाइक दिस, हनी, ड्राई जिंजर, कुकुम्बर, फ्रूट्स एक्सेट्रा, 5 लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्राम एंड रेन वाटर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रेन वाटर क्यों? तो रेन वाटर उनमें बहुत सारा मिनरल्स रहेगा, इसके लिए उन्होंने उनको बोला है कि आपको रेन वाटर लेना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आई एम कमिंग ऑन, सॉरी कुछ पूछ रहे क्या? ओके, ठीक। नाउ आई एम कमिंग ऑन द वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉडरेट डाइट मीन्स मित आहार। मित मतलब कम, मित मतलब कंट्रोल्ड, मित मतलब थोड़ा सा, मित मतलब शॉर्ट। ओके, तो क्वालिटी ऑफ फूड कैसी होनी चाहिए? सुस्निग्धम मधुर आहार चतुर्थ विवर्जितः, चतुर्थ अंश विवर्जितः, भुज्यते शिव संप्रीत्य मीताहार स उच्यते। मीताहार किसको बोलते हैं? जो सुस्निग्ध, लुब्रिकेटेड फूड है, जो मधुर है, जो हम लोगों को हमारे पेट का अगर 4 भाग करते हैं, तो 3 भाग हमको पेट में फूड और वाटर डालना है। मतलब जो खाना है और पानी है, ये
1/3 ही खाना है, और ये चौथा जो भाग है वो आपको हवा के लिए खाली रखना है। और जब भी खाना है तब आपके अंदर जो रहने वाला शिव है, जो भगवान है, उनको प्रसन्न करके लिए खाना है। तो नेक्स्ट वाला जो श्लोक है वो बताता है कि किसके लिए नहीं खाना है और किसके लिए खाना है। तो देखिए क्वालिटी ऑफ फूड में क्या बोला है कि पुष्टम सुमधुरम सुस्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषण। आपको पुष्ट करने वाला, आपको सुमधुर रहने वाला, सुस्निग्ध लुब्रिकेटेड रहने वाला, और डेयरी प्रोडक्ट्स, गव्यम, गाय के दूध के इसमें से बना हुआ पदार्थ, धातु प्रपोषणम, सप्त धातु, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, रक्त, मांस, ये जो है ये सप्त धातु आपके पोषण होने चाहिए। अभी देखिए मनोभिलिषितम, मतलब मन को भाने वाला नहीं, मन को स्वस्थ करने वाला। आप अगर पेट भर के खाएंगे, आप अगर आपके टेस्ट के लिए खाएंगे, तो आपका मन अस्वस्थ होगा। आप ज्यादा खाएंगे तो मन अस्वस्थ होता है, नहीं यार यार हिल नहीं पा रहा है, बहुत सारे गुलाब जामुन खा लिए मैंने। तो मन को स्वस्थ करने वाला खाना खाना है। योग्यम, योग्य कैसे पता चलेगा? यू हैव टू अवेयर व्हाट इज योग्य फॉर मी। 2 चपाती मेरे लिए ओके है, मैं तीसरी चपाती खाऊं कि नहीं खाऊं, तो ये आपको डिसाइड करना है। यू विल डिसाइड योग्य क्या है। योगी भोजनामाचरेत। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ फूड आपको यहाँ पे बताया है मॉडरेट डाइट। नाउ एनालिसिस ऑफ वर्स मिताहार सजेस्ट following points of the quality of food: sattvic, 6 type of test, quantity of food, moderate diet, mental attitude while eating the food। आपका खाना खाते समय गुस्से में है, नाराज है। बच्चों में देखिए, अरे मेरे जो भी फेवरेट फूड है, मैगी नहीं बनाया आपने, मैं नहीं खाऊंगा, मैं सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, है ना, गुस्से में रहते हैं और गुस्से में ही खाते हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी सेटिस्फैक्शन ऑफ द गॉड रिजाइडिंग इनसाइड। आपके अंदर में भगवान रहते हैं, उनको आनंद प्राप्त करने के लिए, समाधान रहने के लिए आपको खाना है। तो 4 टाइप ऑफ फूड: चार्व्य मीन्स च्यूड, कोश्य मीन्स sucked, लेय मीन्स licked, and पेय मीन्स drink. Okay. Now other considerations also: a source of food, it should be earned through fair means। अच्छे कमाई से, पैसे से आपको खाना है, बुरे पैसे से नहीं खाना है। Okay. Attitude while cooking: the person who is cooking the food should be have a good attitude while cooking। Attitude while serving the food, attitude while eating the food। सब एटीट्यूड उन्होंने, मन का एटीट्यूड उन्होंने गृहित रखा है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे कर्म योग बताया है, देखो हठ प्रदीपिका में कर्म योग कहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि आपको अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास ही करना पड़ेगा, दूसरा कुछ भी नहीं है। नो शॉर्टकट, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। तो कैसे करना है प्रैक्टिस? विदाउट स्लैकनेस, विदाउट आलस, क्रिया युक्त सिद्धि ही, आपको क्रिया ही आपको सिद्धि देगी। स्याद क्रिय से कतम भवेत। आप अगर सिर्फ बातें करेंगे, और विजय सर बहुत अच्छे से श्लोकास बोलते हैं और पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। उसको नहीं सिद्धि मिलेगी, उनको फायदा नहीं मिलेगा। उनको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। न शास्त्र पाठ मात्रेण, अभी जो मैंने बताया, ग्रंथों का अभ्यास है, सब कुछ है। योग सिद्धि प्रजायते, आपको योग सिद्धि नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ करने से ही होना है। ऐसा एक अभी नेस्कैफे का एडवर्टाइज चल रहा है, देखिए। तो करना पड़ेगा आपको, करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नाउ कई लोग उन्होंने, मतलब स्वामी सावतराम के टाइम में भी ऐसे कई लोग होंगे कि साधु का ड्रेस पहन के कुछ अलग काम करते होंगे, या उनको दिखा होगा, इसलिए उन्होंने ये श्लोक बोला है, न वेश धारणम सिद्धे। सिर्फ कपड़े पहनने के बाद, योगा का ड्रेस पहनने के बाद योग नहीं होगा। न कारणम तचकथा, मतलब कारण देने से भी नहीं होगा। क्रिएव कारणम सिद्धे, आपको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, आपको सूक्ष्म व्यायाम करना पड़ेगा, आपको आसन करना पड़ेगा, तब आपको
सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। It is only practice that is cause behind accomplishment. Success cannot be attained by adopting a particular dress, वेश. It cannot be gained by telling tales, जो मैं कर रहा हूँ. Practice alone is the means to success. Practice, practice, practice. ये प्रैक्टिस जो है, ये महर्षि पतंजलि ने अभ्यास व वैराग्याभ्याम तन निरोधः, ये प्रैक्टिस जो है लॉर्ड कृष्णा ने भी बताया है. अकौंतेय, अभ्यास एंड वैराग्यम गृह्यणि, आपको अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा. योग वशिष्ठ श्री रामचे की गुरु जी, उन्होंने भी यही बताया है, आपको अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा. तो देखिए प्रैक्टिस का महत्व सब जगह पे है, तो यहाँ पे भी वही बताया है. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू डू प्रैक्टिस एंड हु इज एलिजिबल टू डू प्रैक्टिस. कौन कौन प्रैक्टिस के पात्र है? सब लोग है, सिर्फ बालक छोड़ दिया है इन्होंने यहाँ पे. युवा मीन्स यंग, वृद्ध मीन्स ओल्ड, एंड अतिवृद्ध मीन्स और ज्यादा वेरी ओल्ड, एंड व्याधितो मीन्स डिजीज्ड पर्सन, एंड दुर्बलोपी मीन्स वीक पर्सन. These are person are eligible to do practice और योग. सिर्फ बालक नहीं बताया है, इसका कारण ये है कि मे बी उस टाइम पे गुरुकुल सिस्टम चलता होगा, वहां पे जाके वो करते होंगे. मे बी, आई डोंट नो अबाउट इट. अभी आप बोलेंगे यहाँ पे स्त्री नहीं है, तो आगे जाके कई श्लोकों में ऐसा लिखा है कि स्त्री भी कर सकती है. बहुत सारी चीजें लिखी है और श्लोक में, तो वुमेन्स कैन बी डू. कई कई लोगों का अभी 8 मार्च भी आ रहा है ना, तो बोलेंगे अरे हम लोगों का नाम ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे कैसे, है ना सरस्वती जी? एम आई राइट? Definitely. Okay, now we are coming on second chapter. In second chapter, the first shloka tells about the some prerequisite. आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा. सबसे पहले क्या बताया है? आसन है, तो आपको अथासने दृढ़े, आपको अथासने मतलब यू हैव टू बिकम द एस्टैब्लिश्ड इन पोस्चर. आपको पोस्चर एकदम स्थिर रखना पड़ेगा. स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता लानी पड़ेगी, सुखमयता लानी पड़ेगी आपको पोजीशन में या पोस्चर में. नाउ देन योगी, योगी कौन होता है? जो अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखता है, दैट इज अ योगी. वशी, कंट्रोल्ड हित मितासन, आपको योगिक डाइट, मित मित आसन, योगिक डाइट, आपको मॉडरेट फूड के ऊपर भी आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा. देन गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामेन समाभ्यसेत, गुरु के मार्गदर्शन के नीचे आप प्राणायाम करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट श्लोक इज वेरी वेरी फेमस, और बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं क्योंकि इट इज अ रिलेशन विथ आवर थॉट एंड माइंड विथ आवर एयर. आपके हवा या वायु के साथ में हमारा मन चलता है. देखिए मैं अभी शांत हूँ, तो मेरा एकदम सांसों की गति है ना स्लो डाउन हो रही है. अगर मैं गुस्से में आ गया तो देख लूंगा तुझे, मैं मार दूंगा तुझे, है ना, ऐसा बोलते हैं. तो क्यों? सांस बड़ी है तो मन भी एक्टिवेट है. तो वही लिखा है यहाँ पे, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, योगी स्थानत्वम आपनोति ततो वायु निरोधी. आप अगर एंजाइटी में हो, आप अगर स्ट्रेस में हो, तो आपकी सांस बढ़ेगी. ऐसा कभी भी लगता है आपको कि यस आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग, सो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, तो पहले सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए और रिलैक्स हो जाइए. ओके, सांसों के ऊपर ध्यान देना है, रिलैक्स करना है, स्लो डाउन करना है. उसके बाद में आपको जो भी निर्णय लेना है वो लेना है. जैसे हमारे योग क्लास में हम लोग पहले आने के बाद पहले शांत करने बोलते हैं, क्योंकि घर से निकलते निकलते योगा हॉल में आते आते इतने सारी चीजें उनके जिंदगी में होती है, तो उनका जो भी माइंड है वो माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है. तो डिस्ट्रैक्ट माइंड के लिए सबसे पहले सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, कपाल भाती कीजिए, स्ट्रेस रिलीज होगा, देन इट विल बी हैपन. ओके, सो किधर गया ये?
या हाँ सॉरी, दिख रहा है ना ये? यस। या सो चले वाते चलम चित्तम, इतना याद रखे, वात जैसे चलती है वैसा चित्त चलता है। निश्चले निश्चलम भवेत, वो निश्चल होगा तो आप निश्चल हो जाओ। नाउ नेक्स्ट इज प्राण वायु का महत्व बताया है। जब तक आपका ये प्राण शक्ति है, प्राण है, तब तक आपको विजय बोला जाता है। जब तक आपका प्राण है तब तक आपके शरीर को नाम दिया जाता है। एक बार प्राण निकल गए तो क्या बोलते हैं, बॉडी को लेके आएंगे इतने इतने बजे और इतने इतने बजे अंतिम संस्कार है, उसको अग्नि संस्कार देंगे बॉडी को, देह को, ऐसी ही बात करते हैं हम लोग। हमारे कितने भी नजदीक वाला रहेगा तो ऐसा बोलते हैं क्या, मरण आने के बाद या डेथ होने के बाद विजय, चल अभी विजय को लेके आएंगे और विजय को अग्नि संस्कार देंगे? नहीं, उसको बॉडी ही बोलेंगे। तो बॉडी का देखिए कितना महत्व है। एग्जिस्टेंस किसके ऊपर है, तो सांस जब तक है तब तक आपका एग्जिस्टेंस है। सांस निकल गई, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। यही लिखा है, यावद वायु स्थितो देहे तावद जीवन उच्चते। जीवन कब तक है, जब तक देह में वायु है। मरणम तस्य निष्क्रांति ततो, निष्क्रांति मीन्स निकल जाना, मरणम तस्य वायु निरोधे, वायु का निरोध हो जाता है। So long as the breathing air stays in the body, it is called life. Death consists in the passing out of the breathing air. It is therefore necessary to restrain the breath. Okay? समझ में आ गया? अभी आते हैं हम लोग नाड़ी शुद्धि की ओर। सबसे पहले उन्होंने कुंभक बोलने के पहले उन्होंने देखिए प्री रिक्विजिट क्या क्या बोला है। हम लोगों ने 4 चीजें देखी। आपके मन में कंट्रोल होना चाहिए, आपका योगिक डाइट होना चाहिए, उसके बाद में आपको नाड़ी शुद्धि करनी है, नाड़ी की शुद्धियां करनी है, और इसके बाद में भी अभी इन्होंने षटकर्म बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, 20 से 30 मार्क के लिए आपको आएगा, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूरेत। अभी कई कई इंस्टीट्यूट क्या है, राइट नॉस्ट्रिल से सबसे पहले सांस लेने के लिए सिखाते हैं। अभी शास्त्र में क्या लिखा है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करना है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। अभी योगिक परिभाषा में क्या है, लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से पूरक, सूर्य नाड़ी से रेचक, सूर्य नाड़ी से पूरक और चंद्र नाड़ी से रेचक। सो ये जो है ये क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बराबर। लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है क्या प्राणायाम ऐसा करके, नहीं, यहाँ पे एक ही बताया कि नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं, तो लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। दैट इज नाड़ी शोधन एज पर हुम, एज पर हठ प्रदीपिका। ये हठ प्रदीपिका में कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग के ऊपर स्टैम्प कर लो, ये डिफरेंस पूछा जाएगा। वेयर इट इज रिटन नाड़ी शोधन, वेयर इट इज रिटन अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके, तो याद रखिए। नाउ ये जो करना है ये कितनी बार करना है, तो 4 बार करना है। 4 बार कब कब, प्रातः मतलब सुबह सुबह, दीन मध्य, मध्यम दीन मतलब 12 बजे के पहले, सायर मध्य मतलब शाम को, एंड मध्य रात्रि मतलब आधी रात। तो ये आपको 80 बार एक वक्त में जब शुरू करेंगे तो 80 बार आपको कर रहा है, ऐसा इन्होंने बताया है। ये विजय जी नहीं बता रहे हैं, स्वामी स्वात्माराम सूरी 15वीं शताब्दी में इन्होंने ये बताया कि आपको 4 बार करना है नाड़ी शुद्धि, और वो भी 80-80 टाइम, एक वक्त 80, सेकेंड टाइम 80, फोर्थ टाइम 80 और चौथी टाइम 80। अभी कोई बोलेगा अरे ये तो 360 हो गया, तो ऐसा मत बोलिए, क्योंकि जो लिखा है वो हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग अपना खुद का समझने के लिए ठीक है, लेकिन किसी को बताना नहीं। अरे वो स्वामी स्वात्माराम ने मालूम है कि आपको 360 टाइम उन्होंने बताया है नाड़ी शुद्धि करने के लिए, तो वो बंदा बोलेगा कहाँ पे लिखा है बता मुझे। ऐसा नहीं है, वहां पे इतना ही लिखा है 80 बार करना है। तो ये कंफ्यूजन। हाँ, I want to interrupt. ये जो कुंभक है ये कब काउंट होगा, मतलब आपने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया, दिस इज वन।
ओके या ऐसा 80 बार करना है बोला है। ओके 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 चलो, और किसी को क्वेश्चन है अभी तक? हाँ, 1 मिनट। नाउ यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि एक 3 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। दैट 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम क्या है? तो कनिष्ठ कनिष्ठ प्राणायाम। कनिष्ठ प्राणायाम मीन्स व्हाट? कि लोअर, जब आप प्राणायाम करो, शुरुआत में शुरू करोगे तो आपको पसीना आएगा। इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं कि प्राणायाम करने से क्या क्या होता है। तो पसीना आपको, अगर कुंभक करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आपको पसीना आता है। अगर आपका शरीर शिवरिंग हो रहा है, ट्वेरिंग हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका मध्यम प्राणायाम है। अगर आपका मन जो है रिलैक्स है, शांत है, स्टडीनेस है, तो समझ लेना कि ये उत्तम प्राणायाम है। तो कनिष्ठ प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम और उत्तम प्राणायाम, 3 प्रकार के टाइप्स इन्होंने बताए हैं प्राणायाम के। ये कॉन्सेप्ट हठ प्रदीपिका में लिखा है, ऐसा समझ लीजिए। In the beginning, there is a perspiration. In the middle stage, there is a wearing or shivering. And in the last or the third stage, one obtains steadiness. And then the breath should be made steady or motionless. Okay? Next आते हैं हम लोग अभी how to control pranayam. These are the principles. These are the principles how to do kumbhak or how to do pranayam. Okay? So how to do control? How to control? You have to control like slowly, gradually, like the lion in the circus. अगर लायंस को, एलिफेंट को और टाइगर को अगर जंगल में से लेके आके दूसरे दिन आपके सामने रखेंगे, चलो पैर उठाओ और पूंछ उठाओ या दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हो जाओ, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वो सर्कस में धूम मचा देगा, सब जगह पे भागेगा इधर उधर, क्योंकि उसको ट्रेन नहीं किया है, उसको स्लोली स्लोली कंट्रोल नहीं किया है। तो हमारा प्राण जो है वो हमारे टाइगर की जैसा है, हमारा प्राण जो है हमारे लायन की जैसा है। इट विल बी गिव सो मेनी बेनिफिट्स बाय थ्रू द एनर्जी। तो इसको कंट्रोल करना है, पहले इसको कंट्रोल में लाना है। तो कंट्रोल में लाएंगे तो उसका फायदा आपको मन के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए भी होगा। सो द टेक्निक इज स्लोली, ग्रेजुअली, शनै शनै ही। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है, शनै शनै ही। जब मैं डिप्लोमा करता था, मतलब 2010 में मैंने डिप्लोमा किया, तभी मेरा नाम शनै शनै गिरा था। अरे वो देख शनै शनै आ गया, क्योंकि मैंने ये वर्ड बहुत फेमस कर दिया था वहां पे। अरे कैसे कैसे करना है, यहाँ पे योग टीचर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? शनै शनै बनाते हैं, ठोक ठोक के बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग शनै शनै सीखेंगे और बढ़िया सीखेंगे। तो यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद अवश्य शनै शनै। जैसे सिंह, गज और व्याघ्र को आहिस्ते ट्रेनिंग देके सिखाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, वैसे ही हमारे सांसों को भी कंट्रोल करना है। सांसों को कंट्रोल नहीं करोगे, आपकी ब्रीद अगर फास्ट होगी तो आपका नाश होगा। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए आपके अकाउंट पे रोज के 21,600 लाख रुपया आके पड़ा रहता है, और 21,600 जब आपके अकाउंट में आते तो आप उसको क्षण क्षण, सेकंड सेकंड के ऊपर खर्च कर रहे हो। कैसे खर्च कर रहे हो? जो आपकी सांसों की गति है वो दिन भर में 24 घंटों में 21,600 टाइम है, 600 टाइम आती है। आप अगर फास्टली गुस्से में उसको खर्च करोगे तो नेक्स्ट डे का जो 21,600 का आने वाला जो अमाउंट है उसमें से आपको लोन लेना पड़ेगा। तो आपका जीवन जो है वो आहिस्ते से खत्म होगा। तो आपको जो ये 21,600 लाख आपको मिल रहा है उसको कम खर्चा करना है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 मिनट में 15 टाइम, 1 घंटे में 900 टाइम और पूरे दिन में 21,600 टाइम। तो इस तरह से आपको सांसों को 15 अगर 1 मिनट में लेते हैं तो 10 टाइम लेने की कोशिश करो। स्लो डाउन करना है आपकी सांस को। अगर 10 कर रहे हो तो 5 बार लेने की कोशिश करनी है। आपको मालूम है कि टॉर्टोइज कितनी
टाइम 1 मिनट में कितना सांस लेता है एक टाइम में, 1 मिनट में? एनीवन? किसी को पता है क्या टॉर्टोइज 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? Twice. Hardly I think 2 or 3. कौन बोला 2 और 3? Myself. ओके, सरस्वती जी? हाँ। हाँ, सरस्वती जी को मालूम है 2 ही बार सांस लेता है वो। और घोड़ा, कुत्ता मालूम है कितनी बार लेता है सांस? That's I think more than it takes. हाँ, तो इसके लिए उनकी उम्र जो है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम है। कम है। टॉर्टोइज का क्या है, ज्यादा लंबा है। इसका कारण ये है, टॉर्टोइज जो है वो 100 साल, 150 साल, 200 साल जीता है, क्योंकि वो स्लोली सांस लेता है, स्लोली छोड़ता है। और कुत्ता, हॉर्स, ये जो है ये बहुत फास्ट सांस लेते हैं, इसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन कम है। सो याद रखिए कि आहिस्ते आहिस्ते लेना है, आहिस्ते आहिस्ते छोड़ना है। We will see in प्राणायाम सेक्शन, जब प्राणायाम करेंगे हम लोग तब तक हम लोग करेंगे, देखेंगे उसको। नाउ वी आर सीइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम ठीक से करोगे तो आपके सब रोग निकल जाएंगे, अगर आप गलत करोगे तो सब रोग आपके निकल आएंगे। द टू वे रेजर, द धार जो है वो दोनों तरफ से है, तो आपको वो रेजर के ऊपर, दो एज के ऊपर आपको ठीक से यूज करना पड़ेगा व्हाइल परफॉर्मिंग प्राणायाम। अगर गलत करेंगे, आयुक्त का अभ्यास करेंगे तो क्या क्या आपको रोग निकल सकते हैं? तो हिक्का, श्वासश्च, काशश्च, क्षीर कर्ण अक्षी वेदनाः भवन्ति विविधः रोगः पवनस्य प्रकोपतः। अगर पवन का प्रकोप हो गया तो आपको हिकअप होगा, आपको अस्थमा होगा, आपको कफ रिलेटेड रोग होंगे, पेन इन द हेड, माइग्रेन, आधा सर दुखने लगेगा, द ईयर्स प्रॉब्लम, द आईज विल बी getting affected by the प्रकोप. These and various kinds of diseases are generated by the disturbances of breath. अपान वायु, आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, बाहर फेंकना, मल मूत्र बाहर फेंकने वाला वायु अगर प्रकोप आ गया तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको पाइल्स होगा। ये सारी चीजें हो सकती है जब आपका वात जो है ठीक से काम नहीं करेगा। तो हम जो सीखने आए हैं वो यहाँ पे है, और इसको हम लोग बाद में अच्छे से उसको रिलेट करके देखेंगे। दिस इज द बेसिक नॉलेज, जस्ट know the things where it is written and why it is written. ये किसके वजह से लिखा है? आपका एयर, अगर प्राणायाम अगर आप ठीक से नहीं करोगे, आयुक्त अभ्यास करोगे तो आपके रोग निकल आएंगे। आपका वात बिगड़ा हुआ है तो आपका रोग निकल आएंगे। नाउ द नेसेसिटी ऑफ षटकर्म, व्हाई इट शुड बी। अभी षटकर्म जो है बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे महर्षि स्वामी स्वात्माराम सूरी ने बताया है कि षट कर्म करने हैं, क्यों करने हैं और क्यों नहीं करने हैं, इनका भी उल्लेख दिया है उन्होंने। Why should we should do षट कर्म? षट मीन्स 6 एंड कर्म मीन्स कर्म करना, जो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है वो करना। तो पहले श्लोक में उन्होंने बोला है कि मेद श्लेष्म अधिकः। अगर आपकी ओबेसिटी, देखो मैंने साइड में यहाँ पे दिखाया है, ओबेसिटी वाला बंदा दिख रहा है क्या? ओबेसिटी वाला बंदा दिख रहा है? यस सर। अगर ओबेसिटी है तो आपको करना है। अगर आपको कफ है, श्लेष्म है, तो आपको करना है। पूर्व षटकर्माणि समाचरेत्, आपको पहले करना है। अगर ये दो चीजें हैं तो देखो, ये बहुत आसान करके मैंने बताया, मुझे नहीं लगता इससे आसान और कुछ कर पाएंगे। अन्यस्तु नाचरेतानि दोषानाम समभावतः, ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोषानाम मतलब त्रिदोष। कौन से त्रिदोष हैं? वात पित्त कफ। यस, वात पित्त कफ।
अगर ये तीनों भी अगर समभावना में है, समान बैलेंस स्टेट में है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें यहाँ पे बताई है, याद रखिए। षट कर्म करने के लिए किसको बोला है और किनको नहीं बोला है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु शुड नॉट डू एज पर द ओपिनियन ऑफ स्वामी स्वात्माराम जी, एंड हु शुड डू, तो मेद श्लेष्म अधिकः, जिसको अधिक है उन्होंने करना है, और जिसके त्रिदोष बैलेंस स्टेट में उनको नहीं करना है। If there be excess of fat and flame in the body, the 6 kinds of kriyas, duties should be performed first. But others not suffering from the excess of these should not perform them. Okay? Now next. Now, which are the 6 karmas? The 6 karmas are dhautir bastis tata neti tratakam naulikim tatha कपाल भाती चैतानी षट कर्माणी प्रचक्षते। तो धौती मतलब क्या, बस्ती मतलब क्या, नेति मतलब क्या, त्राटक मतलब क्या, नवली मतलब क्या, कपाल भाती मतलब क्या, ये आपको पता है। बट आई एम सेइंग दिस बाय माय ओपिनियन, माय साइड। व्हाट इज मीन बाय धौती? धौती का मतलब क्या है? वॉशिंग, या वॉशिंग, क्लीनिंग। हाँ, कई कई लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल वॉशिंग, एक्सटर्नल वॉशिंग, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। तो याद रखिए, कभी भी जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो प्रश्नों को समझ के हुए आपको एग्जाम में बताना है। वॉशिंग, ओनली वॉशिंग। तो क्या वॉशिंग करना है? यहाँ पे स्टमक का वॉशिंग बताया है। कौन से तरीके से बताया है? तो आपको एक क्लॉथ लेना है, चतुर अंगुल विस्तार हस्त पंचदशायत। अगर इसको मॉडर्न इरा में हम लोग इसको मापेंगे या मेजरमेंट लेंगे, तो 4 उंगली इस तरह से, वीट जो है वो आपकी 3 या 4 इंच की होनी चाहिए, मलमल का कपड़ा होना चाहिए, और 22 फीट होना चाहिए। कैसे याद रखेंगे 22 फीट? देखिए यहाँ पे श्लोक देखिए क्या लिखा है। श्लोक का नंबर क्या है? 22. 22। तो वस्त्र का मेजरमेंट क्या होगा? 22. 22। और इजी। तो ये है, ये याद रखने का तरीका है। 4 अंगुल मीन्स 3 या 4 इंच का उसका विड्थ रहेगा, और लंबाई जो रहेगी वो 22 फीट रहेगी। और इसको आपको पानी के साथ में आपको निगलना है। यू हैव टू swallow इट इनसाइड। आहिस्ते आहिस्ते आपको swallow करना है। हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से करना है वो। दीज आर द धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नवली, कपालभाति। धौती जो है वो वस्त्र धौती बताई है, बस्ती जो है वो जल बस्ती बताई है, नेति जो है वो सूत्र नेति बताई है। अभी बहुत सारी नीतियां हैं, मतलब जल नेति, द्रुत नेति, दुग्ध नेति, ऐसा कुछ नहीं है। हठ प्रतिपिका में स्वामी स्वात्माराम जी सिर्फ हमको ये बता रहे कि जल नीति करनी है। त्राटक कौन सा है? तो बाह्य त्राटक, आउटवर्ड देखते हुए आपको करना है। नवली कौन सी है? भ्रमर नवली। हाँ, आपको घुमाना है पेट को, राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नाउ कपालभाति, ओनली वन कपालभाति विथ एयर, दैट इज अ वात क्रम। वात के साथ में यू आर यूजिंग द एयर, तो सांस को यूज करते हुए हम लोग क्लीन कर रहे हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन धौती। धौती कर्म जो है वो धौती कर्म आपको 22 फीट लंबाई वाला कपड़ा, 4 इंच रुंद या विड्थ वाला कपड़ा आपको खाना है ना? आराम आराम से आपको पेट में निगलना है। ये देखिए, ये करने के लिए ना इजी है, लेकिन कब इजी है? कौन बताएगा कब इजी होगा? इजी सर होगा? जब धीरे धीरे आदत होगी तो होगा, मतलब विथ प्रैक्टिस ठीक है, इट विल चलो, बी इजी। वृषाली ने बता दिया धीरे धीरे आदत होगी तो होगा। और कौन बता सकता है? Under proper guidance of a good practitioner. ओके, अनुप्रिया भी बोल रही है कि अंडर गाइडेंस, गुरु के गाइडेंस में होना चाहिए। और कौन बता सकता है? चलो वीडियो ओपन करो एक एक प्लीज। ऑल पीपल आर ओपन योर वीडियोस।
बताइए। You're saying when to do it, no? When Sorry? to do it. सॉरी, You are asking when to do it, right? हाँ नहीं कब होगा ये हमको अभी इतना बड़ा कपड़ा निकलना है, बाप रे सर कुछ भी बोल रहे हैं, कपड़ा कभी निकलते हैं क्या? अरे कुछ तो खाने के लिए गुलाब जाम बोलो, जिलेबी बोलो, कुछ ऐसा अच्छा बोलो कुछ खाने के लिए, तो हम लोग खाएंगे तो मजा आएगा। कपड़ा खाने को बोलेंगे तो कैसे खाएंगे सर? तो अगर ये हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कैसे होगा हमारे से? अभी सूत्र नीति से लोग सूत्र नीति से डरते हैं। हाँ, खाली yes, पेट, खाली पेट, ओके। और सकाळी लवकर, हस्बैंड जो क्लॉथ है उसको गीला करके फिर अंदर डालना है। मिठाच्या Okay. पाण्यातून काढून। और आपने एक बार शायद पॉइंट बताया था कि वमन का प्रैक्टिस करने के बाद जब वो मतलब आदत हो जाती है कि उसका स्टिमुलस कम हो जाता है, फिर अंदर जाना शुरू हो जाता है। ओके चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा। देखिए आप अगर मार्केट में जाते हो तो पहले क्या बोलते हो? अपने मार्केट में जाने के लिए चले जाते हो क्या, डायरेक्ट निकल जाते हो क्या? सबसे प्रोसेस पहली क्या होती है? क्या होती है? You ask for that thing. सोचते हैं, सोचते हैं, और उसके बाद प्लानिंग करते हैं, और पैसा वगैरह निकलते हैं, पैसे लेते हैं। हैं। और जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा है अभी तक, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए आप अगर मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ना, अरे मुझे मार्केट जाना है यार, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, आई वॉन्ट टू गो। जब आप मन में बोलोगे कि मैं जाने वाला हूं तब आप निकलते हो। हाँ, आपने पहले मन में एक थॉट लेके आया, वो थॉट को आपने बोला कि मैं ये करूंगा, तभी आप प्रिपेयर होते हो जाने के लिए। एम आई करेक्ट? तो दिस इज द टेक्निक ऑफ डूइंग धौती। धौती कैसे करेंगे आप? आपको रात में बोलना है कि मैं ये कर पाऊंगी, आई विल डू इट विद द कॉन्फिडेंस, आई विल डू। अगर ये बोलेंगे ना तो आपको 100% होगा, 100%। मैं बोलता हूँ ना 100% होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि वो 22 फीट नहीं जाएगा, लेकिन 1 इंच तो जाएगा ही जाएगा आपके पेट के अंदर या गले के नीचे। When you decide ना, the cosmic energy giving energy to you to push your own self। जैसे शाहरुख खान के पिक्चर में सारी कायनात क्या बोलते हैं ना, वो मुझे याद नहीं है, सॉरी, आई एम वेरी मच पुअर अबाउट इट। जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत के साथ चाहा जाता है तो पूरी कायनात उसको प्राप्त करने में क्या बात है मनुप्रिया। आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख खान। ओके ओके, सो ऐसा है कि आप अगर बताओगे अपने आप को कि मैं ये कर पाऊंगा, तो यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, कोई आपको रोकेगा नहीं। देयर इज अ Swami Vivekananda tells about this, the whole potential in you. You have to manifest it. The whole soul, every soul have a potential. सबके पास ताकत है, सब बाहर निकलना है। देखिए एक बल्ब रहता है या ट्यूबलाइट रहती है, ट्यूबलाइट जो है उसके ऊपर बहुत सारी धूल जमा रहती है, उसमें ताकत है पूरा का पूरा जलने की, प्रकाश देने की, लेकिन वो धूल की वजह से वो ज्यादा प्रकाश नहीं दे रही है। आप अगर उसको साफ करोगे तो कैसे होगा? इट विल बी गिव मोर लाइट ना। तो वैसे ही आपके मन के ऊपर बहुत सारे कचरा पड़ा हुआ है, काम क्रोध मोह मद मत्सर चित्त वृत्ति पंच क्लेश, तो इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? योग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये। है कि किसी को याद? अष्टांग योग का जो पर्पस है, क्या पर्पस है अष्टांग योग का? योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही विवेक ख्याति विल का। फंटास्टिक, वाओ, बढ़िया, थैंक यू। सब लोगों ने रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। नाउ वी आर कमिंग ऑन आवर टॉपिक। नाउ सी, धौती करने से आपको बहुत सारी फायदा मिलेंगे। हम लोग टेक्निक में नहीं जाएंगे, बाद में इसको और इलेबोरेट करेंगे। जस्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ स्मॉल कॉन्सेप्ट। सो धौती का जो टेक्निक है, आपको ऐसे ऐसे निकलना है एंड यू हैव टू पुल इट आउटवर्ड साइड। इफ यू आर डूइंग दिस, द काश श्वास प्लीह कुष्ठ कफ रोगाश्च विंशति, मतलब 20 टाइप के रोग है। वो 20 टाइप के रोग कौन से हैं?
तो वो जो रोग है वो मैं आपको बताता हूँ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोग, द 20 टाइप्स ऑफ रोग. सो these are like a yeah, see, वृत्ति तंद्रा निद्रा अधिकस्य स्टेमिता timidness, sorry, anorexia nervosa, drowsiness, excessive sleep, timidness, heaviness of the body, laziness, sweet taste in the mouth, mucus expectoration, the excess salivation, excessive excretion of etc., loss of strength, then indigestion, flame added to vicinity of heart, flame added to throat, hardening of the vessels, the hardening of the vessels, goiter, goiter है ना, बड़ा होता है, goiter, obesity, then suppression of digestive power, urticaria, and pallor such as whiteness of urine. यूरिन में जो व्हाइटनेस ज्यादा आता है, ऐसे प्रकार के 20 प्रकार के उन्होंने रोग जो है वो निकल जाएंगे, ऐसा बताया. वी विल गो इन डिटेल इन दैट. अभी के लिए ओके, जो है वो मैंने पढ़ के दिखाया आपको. नाउ द बस्ती. बस्ती इज अ योगिक एनिमा इन और एंशिएंट इरा और इन मिडिएवल जो मध्यम जो टाइम था उसमें जो करते थे बस्ती, दैट इज अ योगिक एनिमा. अभी के जमाने में थोड़ा सा केमिकल यूज करके एनिमा देते हैं. आपके जो एनस है, एनस के अंदर इंसर्ट करके, जो पाइप है इंसर्ट करके, जो 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 भी उसका ये है केमिकल है, वो केमिकल ऊपर में रखते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको नीचे से पानी को कूल करना है ऊपर की तरफ. आपको पानी के अंदर, रिवर के अंदर, नदी के अंदर जाके आपको उकड़ू बैठना है और आपके एनस से आपको पानी को सक करना है ऊपर. मीन्स यू आर यूजिंग द पावर ऑफ योर एनस, योर एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है उसको यूज करते हुए आप पानी को ऊपर खींचेंगे तो आपकी जो एनस की ताकत है वो बढ़ेगी. और जो भी पाइल्स या फिस्टुला, ये जो रोग है वो नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जो इंडाइजेस्टिव है, इंडाइजेशन है, कुजीर्णित्व, अजीर्णित्व नहीं होगा. ये सारी जो रोग है वो निकल जाएंगे आपके बस्ती के द्वारा. आप अगर पानी में जाके पानी को सक करने की कोशिश करोगे तो बस्ती बिल्कुल नहीं होगी, सॉरी, रोग कौन सा भी नहीं होगा. तो वेरी दिस इज वेरी हायर टेक्निक. यू हैव टू यूज द, पहले के जमाने में जो ये है बम्बू का डंडा या पीत मूल का डंडा, हल्दी का डंडा, या जो कमल का डंडा रहता है जो हॉलो और सॉफ्ट रहता है, उसका यूज करते हुए वो पानी को सक करते हुए वो साफ करते थे. अभी के जमाने में हम लोग रबर कैथेटर या रबर ट्यूब यूज करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Now this is the colic, enlarged spleen and dropsy arising from the disorders of the vat and bile and cough are all cured by yogic enema by बस्ती. तो जल बस्ती उन्होंने बताया है. Now next is सूत्र नीति. Now जो सूत्र नीति है, देखो सूत्र नीति में इन्होंने क्या बताया है, दिव्य दृष्टि प्रदायनी. Your nose is इंटररिलेटेड विथ योर आईज. जो भी आपका नोज में कुछ होगा तो आपको आपके ऊपर प्रभाव गिरेगा या परिणाम होगा. तो आप आंखें और नाक का कनेक्शन याद रखिए. कुछ भी हो जाए, सूत्र नीति बोलने के बाद दिव्य दृष्टि प्रदायनी, आपकी आंखों की ताकत बढ़ेगी, प्रकाश आएगा. गले में जत्रु उध्व रोग जात रोगम नेतु राशि निहंती. मतलब आपके सप्तपद जो है, 7 पाद जो है आपके गले के अंदर, उनके रोग निकल जाएंगे. एंड कपाल शोधिनी, आपका फोरहेड चमकना शुरू हो जाएगा. क्रेनियल जो आपके नर्व्स है वो क्लीन होके
आपका जो भी फ्रंटल लोब है वो क्लीन हो जाएगा। सो कपाल शोधरी च एव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ऊर्ध्व रोघक नेतु राशि हियंती जी। सूत्र पहले के जमाने में थ्रेड को यूज करते थे और थ्रेड को अपने नाक से डाल के मुंह में से बाहर निकालते थे। आज के जमाने में हम लोग रबर कैथेटर यूज करते हैं। इट इज अ वेरी सॉफ्ट पदार्थ, वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस। तो वो जो सब्सटेंस है वो यूज करते हुए उसको घी उसके ऊपर लगाते हुए और नाक से डालने के बाद आपको मुंह से उसको निकालते हुए मसाज करना है, एंड दैट इज अ सूत्र नीति विच इज आई शोन हियर। देख लीजिए, चाहिए तो ये मैंने बड़ा कर दिया आपके लिए। तो ये आसान है, लेकिन आपको ये मैं करूंगा, बस मैं करूंगी, ये अगर आपने ठान ली ना तो यू कैन डू वेरी नाइसली। अदरवाइज ये अभी कभी नहीं हो सकता है आपको। कभी भी आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो नहीं होगा। जब कर पाऊंगी ऐसे बोलेंगे तो कर हो जाएगा। नाउ त्राटकम, त्राटक देखिए यहाँ पे एक चीज बताइए, अश्रु संपात पर्यंतम। द ड्यूरेशन इज अश्रु संपात पर्यंतम। कब तक त्राटक करना है ऐसा कोई पूछेगा तो जब तक आंख में से आंसू नहीं आते हैं तब तक त्राटक करना है। क्या फायदा मिलेगा? क्लियर वॉयरेंस मीन्स आपको दो शब्दों में का अर्थ मालूम पड़ेगा, दो शब्दों में का गैप मालूम पड़ेगा। यूर नजर विल बी सूक्ष्म, सटलनेस देखने की आपको ताकत मिलेगी बिकॉज ऑफ द त्राटक। ओके, the being calm, one should gaze steadily at small mark till eyes are filled with tears. This is called tratak by acharyas. बाहर की तरफ gazing करते हुए, look in front of you any kind of object and you have to look it. अभी इसमें भी क्या है, as per my knowledge, as per my learned, कि चमकती हुई चीज को देखना बहुत जरूरी है। अगर चमकती हुई चीज को आप देखोगे ज्यादा अच्छे से तो वो अच्छे से और अच्छे से होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें भी है, पातंजलि योग सूत्र में भी है। त्राटक नहीं बताया लेकिन यहाँ पे ऐसा एक चीज बताई है, सूत्र बताया है कि वो हम लोग उसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है ना। इससे फायदा क्या होगा? मोचनम नेत्र रोगान तंद्रा दिना कपाटकम यत्नत स्त्रताटकम गौप्यम यथा हाटक पेटकम। हाटक पेटकम मीन्स व्हाट? द कैस्केट ऑफ ऑर्नामेंट, द ज्वेलरी बॉक्स। दिस इज कॉल्ड एज ए ज्वेलरी बॉक्स। ये याद रखिए, ये भी पूछते हैं हाटक पेटकम किसको बोला गया है? तो त्राटक को ज्वेलरी बॉक्स के जैसा बोला गया है। त्राटक से आपको क्लियर वॉयंस मिलेगा, आपको सूक्ष्म चीजें मालूम पड़ेगी। नाउ वी आर कमिंग ऑन सेकेंड लास्ट क्रिया, दैट इज अ नवली। नवली यहाँ पे आपको सभी को मालूम है, बाबा रामदेव बहुत ही फेमस है इसके लिए। नवली कैसे करते हैं वो तो इजीली कर देते हैं, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट करते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी हायर लेवल प्रैक्टिस। ये करेंगे तो आपके पेट के रोग कुछ भी नहीं होंगे, सब रोग निकल जाएंगे। डाइजेस्टिव पावर आपका अच्छे से चलेगा, इंक्रीजिंग द एपिटाइट ऑल्सो, डाइजेशन विल बी हैपन वेरी नाइसली, एंड इट्स like the goddess of creation and causes happiness. It dries up all the disorders. This Nauli is an excellent exercise in Hatha Yoga. सबसे मौली, देखिए मौली लिखा है, मौली मीन्स महत्वपूर्ण है, द इम्पोर्टेंट है, ऐसा इन्होंने बताया। नवली के बारे में सभी को लोग जानते हैं तो नवली के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं बातेंगे। नाउ वी आर कमिंग ऑन कपाल भाती। कपाल भाती इज नॉट अ प्राणायाम as per our scriptures. कपाल भाती is a क्रिया, क्रिया and क्रिया। घेरंड संहिता में भी इसको क्रिया बोला गया है, हठ प्रदीपिका में भी इसको क्रिया बोला गया है। Some people are telling this is प्राणायाम। ठीक है, ये भी हमको अपडेट नॉलेज होना चाहिए, कौन बोल रहा है ये? अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, बोल रहा है, तो थोड़ा सा क्लियर वॉइस हम लोगों ने लाना है, because you are a yoga practitioner and very higher yoga practitioner. Some people are saying this is the Kapalabhati is a pranayama, but Kapalabhati as per scriptures the only purificatory practice.
नाउ वस्त्रावल्लोह कारस्य, आपको सांस छोड़ना है एंड नॉर्मली सांस लेना है। ओवर द पीरियड इसका भी चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है, सांस को लेना है या सांस को छोड़ना है, दोनों वक्त आपको एक्टिव रहना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। क्या करती है ये, कफ विशोषणी, कफ को दूर करेगी, अग्नि तत्व को जनरेट करेगी, आपके शरीर में हीट पैदा करेगी। कपाल ख्यातिर विख्याता, कपाल भाती किसको बोलते हैं, जो इस तरह से करता है। When inhalation and exhalation are performed very quickly, like a pair of the bellows of the blacksmith. आपने लोहार का वो धुमकनी देखी होगी, कैसे करती है, भस भस, जैसे वो खींचता है वैसे वो आवाज देती है। मराठी में हमारे बहुत बड़ा गाना है, ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी बाहुरे। सो वी आर नॉट गोइंग ऑन इन दैट। जो ब्लैक स्मिथ का लोहार की धुमकनी है, जो ब्लैक स्मिथ का बेलोस है, उसकी तरह आपको सांस बाहर फेंकनी है। एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन, दैट इज अ कपालभाति। एंड वी आर यूजिंग द श्वास पटल, वी आर यूजिंग diaphragm for it. What is the procedure or physical activity while doing kapalbhati? कपालभाति करते समय क्या होता है, who are going to do, we are going to say or giving the answer. The physical डिस्क्रिप्शन करना है कि फिजिकली क्या होता है, शारीरिक स्तर के ऊपर बदल क्या होते हैं while doing कपालभाति. Anyone? धारणा, कल्पना, वृषाली, तनिष्का, श्रद्धा, अनुप्रिया, चांदनी. सर मेरी में थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. Yeah, but that is Anupriya benefit, na? I am asking the procedure, the description of doing while doing the physical changes happening while doing Kapalabhati. तो बेसिकली जब आप श्वास को बाहर फेंकते हैं तो आपका जो एब्डोमेन है वॉल वो अंदर की तरफ जानी चाहिए, जिससे पूरा एक प्रेशर लेके पूरा खाली करें आप उसको. करेक्ट करेक्ट. एक्टिवली एक्सेल करते समय आपका जो एब्डोमेन रीजन का जो डायफ्राम है, विच इज breaking the abdominal wall, small intestine, long intestine, and the chest area, the cavity, the abdomen, in between that श्वासपटल. और जो बड़ा एक पर्दा बोलते हैं ना, मतलब एक मसल, बड़ा मसल है जो सांस लेते समय आगे की ओर धकेलता है आपके पेट को, और सांस छोड़ते समय पेट को ऊपर की तरफ लेके जो ऊपर की तरफ जाता है. तो ये चीज होती है while doing the physical changes while doing कपालभाति. तो कपालभाति का आपको फिजिकल चेंज क्या होता है, अगर ऐसा कोई पूछेगा तो एब्डोमिनल वॉल, डायफ्राम, श्वास पटल आगे पीछे होगा, और वो भी फोर्सफुली हवा को बाहर फेंकना है, एक्टिवली एक्सेल करना है, एंड इनहेलेशन इज पैसिव. And what is the benefit of this? कफ विशोषणी, कफ दूर करेगा, आपके शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाएगा. और ये कितना करना है, कई लोग 900 बार करते हैं, 1000 बार करते हैं. इज इट ओके, इज इट करेक्ट और व्हाट? नहीं, इतना तो नहीं करना चाहिए. इतना नहीं करना चाहिए. क्यों, इसका कारण क्या है ऐसा नहीं करना चाहिए? एक तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है तो पित्त बढ़ जाएगा बॉडी में. एग्जैक्टली. वाओ, गुड. तो ये याद रखिए कि कपालभाति के कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है वो हाई बीपी वाला नहीं करेगा, माइग्रेन वाला ज्यादा है वो नहीं करेगा. ऑल कैन डू बट एज पर यूर कैपेसिटी. जैसे स्वामी स्वात्माराम जी ने यथाशक्ति, मैंने बोला था नाड़ी शुद्धि में, यथाशक्ति सब कुछ करना है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा स्वात्माराम सूरी बोल रहे थे, उन्होंने बताया है मुझे, ये मंत्र उन्होंने दिया है बाय स्क्रिप्चर. तो हर बार पे आपको एविडेंस देना है, हर बार आपको विटनेस देना है. ये क्या है, कहाँ पे लिखा है? जैसे अनुप्रिया ने बोला कि हम लोगों को तो ऐसा सिखाया है कि यमाज आर सोशल ऑब्जर्वेंसेस है, सोशल रूल्स और रेगुलेशंस है. करेक्ट है,
लेकिन वो किसने बताया है? तो ऑथर का ओपिनियन है, वो स्क्रिप्चर में नहीं बताया है। सो ऑलवेज आपकी आंख जो है वो आंख को आप ठीक से रखिए while you are any kind of knowledge you are getting or you are saying something, you have to give proofs, क्योंकि you are going to be being a yoga therapist, तो ऐसा नहीं होना चाहिए योगा थेरेपिस्ट को कुछ पता नहीं होना चाहिए। ओके, सो वी आर कमिंग ऑन लास्ट क्रिया, दैट क्रिया इज वस्त्रावल। हु इज मोटो? ये मोटो कौन है? ठीक है, ये मोटापा दूर करने के लिए ये बहुत काफी अच्छा है। मोटो कोई तो आया है, ओके, हम लोग उसको बाद में देखते हैं। वस्त्रावल्लोहकार से रेच पूरो संभ्रम हो, कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषण। दिख रहा है ना? Yes. Yes, yes. So when inhalation and exhalation are performed very quickly, like a pair of bellows of the blacksmith, it dries up all the disorders from the excess flame and is known as Kapalabhati. Now ये कपालभाति का और फायदा क्या है? षट कर्म, सॉरी, कपालभाति का फायदा नहीं है। This is benefit of all क्रियाज। द षट कर्म का फायदा क्या है? षट कर्म निर्गत, निकालता है, व्हाट? स्थौल्यम, कफ दोष। स्थौल्यम मीन्स ओबेसिटी एंड कफ मीन्स फ्लेम और म्यूकस। प्राणायाम तथा कुर्यात दासेन सिद्धयति, इसके बाद में आपका प्राणायाम सिद्ध होगा। तो व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट फॉर प्राणायाम? What is the Prerequisite for pranayam? doshas has to be balanced. But they said here na the षट कर्म निर्गता स्थौल्यम कफ दोषः, स्थूलता और कफ भी बाहर निकालेगा। तो प्रिपरेटरी क्या हो गया? प्री रिक्विजिट हो गया ना, आपको करना ही है, यू हैव टू डू। हाँ, तो प्राणायाम सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा प्राणायाम सिद्ध। ओके, सो हियर वी आर कमिंग ऑन दिस। आपको इतना तक ही मालूम है, करेक्ट? अभी मुझे बताएगा कोई, सॉरी, अभी मुझे कोई बताएगा कि ये 6 षटकर्म के अलावा कुछ बताया है क्या? सरस्वती जी आप मत बताइए। ये जो षटकर्म है इसके अलावा कुछ बताया है क्या हठ योगा में? और कोई क्रिया बताइए क्या? ये लेवल 3 वाले, लेवल 2 वाले? नो वन? चलो लेवल 3 वाला मैं ही बता देता हूं। सो सी, दिस इज अपार्ट फ्रॉम 6 क्रियाज। दिख रहा है क्या? Yes. हाँ, अपार्ट फ्रॉम 6 क्रियाज द गज करणी टेल्स इन हठ प्रदीपिका। गज करणी मीन्स व्हाट? गज मीन्स एलिफेंट आणि करणी मीन्स करना। कैसे करता है? पानी कैसे फेंकता है? एलिफेंट स्प्रिंकलिंग द वाटर थ्रू द ट्रंक, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि उदरगत पदार्थ। उदरगत पदार्थ मीन्स व्हाट? आप खाना खाने के बाद आपको ये पानी पी के आपको करना है। आपको खाना खाने के बाद पानी पीना है बहुत सारा और आपको करना है, ऐसा इन्होंने बताया है गज करनी में। तो इससे क्या होगा? आपका पित्त जो है वो एक्स्ट्रा पित्त बाहर निकल आएगा और आपको पित्त का बैलेंस होगा। सो आपको मालूम है क्या, ये एक बहुत ही फेमस लेडी करती थी, किसी को मालूम है क्या इसके बारे में? डायना। यस, डायना। डायना लेडी जो है वो है ये करती थी। इसका कारण ये है कि हमारा एक इंडियन कुक उसके पास था, तो इंडियन कुक योग करता था, उसको योग के बारे में मालूम था। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको अगर आपका चेहरा और ये दिखना है, लस्टर्स चेहरा चाहिए, या आपको चेहरे के ऊपर अगर बहुत तेज चाहिए, तो यू कैन डू लाइक दिस। आप खाना खाइए एंड ओमिट इट सम
फूड यू हैव टू वोमिट सम फूड आउटसाइड। तो ये करती थी, और वो खून जो था, जो भी ब्लड सर्कुलेशन था, वो चेहरे के ऊपर आता। एंड बिकॉज ऑफ दैट द लस्टर एंड द शाइनिंग ऑफ द फेस इज ग्लोइंग ऑन दैट फेस। तो ये यूज करती थी डायना जी, क्योंकि Can I say हमारा something? यस तो गज करने में आप कह रहे हैं कि पानी पीना होता है, जैसे बताया गया है नो नो इसमें। नो सी अनुप्रिया, खाना खाने के बाद पानी पीना है, और पानी पीने के बाद उसको वोमिट करना है। तो जो बट भी कितना पानी, कुछ गैप रखना है, नहीं रखना है, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि खाना खाया तो पानी अवॉइड करें कुछ टाइम। लेकिन अभी देखिए, आपको जो धारणा है, आपकी जो भी आपको मिला है, वो आपको किसी न किसी ने बताया होगा ना। राइट।